Welcome back to Interact with Intellect. We have covered the first part of the subject, which was about strategic position analysis. Now we are entering into the second phase, where we'll discuss the details of strategic choices. Let's just recall what we discussed in the first chapter when we were talking about this particular course. We discussed that strategic decision making requires three major steps. In the first part, we will conduct strategic position analysis, through which we'll understand where we stand today. We have covered that part. The second part is about strategic choices. What are the options? What are the things that can possibly be, done under the given circumstances or under the conditions that we have identified in the first three chapters? In this very chapter, we'll take a look at a number of things which are basically related to the choices that we have to make. The first thing that we'll discuss is the value chain analysis. Value chain, as the name explains, is about the chain of activities that an organization has to perform in order to add value in its products and services. For example, when a garment factory receives cloth, which is obviously unstitched, it converts them through a series of processes into t-shirts. Through a series of process, when this t-shirt is actually prepared, people are ready to give a higher value to that t-shirt compared to that raw material which was the cloth. यूँ समझिए कि अगर आपको ईद पे तोहफे में कपड़े मिले और वो कपड़े जो हो उसकी जगह 1 किलो कॉटन मिल जाए कि लो भाई ये 1 किलो कॉटन आपकी ईद का जोड़ा है, तो आप कुछ ज़्यादा खुश नहीं होंगे. आप किसी दुकान पे जाएं और आप उनसे कहेंगे जनाब मुझे कपड़े खरीदने हैं और वो उसकी जगह आपको कुछ रॉ मटेरियल पकड़ा के दे दें, तो आप उसको पैसे देने को तैयार ऑब्वियसली नहीं होंगे. क्यों? बिकॉज उसकी जो यूटिलिटी आपको चाहिए, जो सर्विस आपको चाहिए, वो आप उससे हासिल नहीं कर सकते. सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के एक टर्म आपने सुन रखी होगी, सप्लाई चेन. इफ यू लुक एट द टर्म सप्लाई चेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. इफ यू टॉक अबाउट द गारमेंट इंडस्ट्री अगेन, सो कहीं किसी कोने में, किसी गांव में कहीं कॉटन उग रही होती है. उस कॉटन को मल्टीपल स्टेजेस में कन्वर्जन प्रोसेस से गुजार के धागे में कन्वर्ट करते हैं. देन इट इज़ कन्वर्टेड निटिंग या वीविंग करके उसको कपड़े में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद वो कहीं डाइंग में जाता है, फिर स्टिचिंग में आता है और फिर फाइनली आपको एक शर्ट की सूरत में वो या किसी भी फैब्रिक की सूरत में आपको वो मिलता है. इस पूरे सफ़र में, इस पूरे सप्लाई चेन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ कॉटन डाउन टू द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर मेकिंग, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का रोल देखेंगे. हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरह से अपनी लेवल पे रॉ मटेरियल्स लेती है एंड देन उसको कुछ प्रोसेसेस से गुजार के कन्वर्ट कर देती है इनटू एन आउटपुट विच इज वैल्यूएबल फॉर देयर कस्टमर. बाय द वे, कस्टमर का मतलब कंज्यूमर नेसेसरीली नहीं है. यानी हो सकता है कि वो कंपनी जो धागा बना रही है, वो उसका जो कस्टमर होगा वो कंपनी होगी जो उससे कपड़ा बनाएगी. जाहिर है वो कंज्यूमर नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट कंपनी, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, वो उसकी कस्टमर जरूर है. सो वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट ये है दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द प्रोडक्ट गो थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड थ्रू दीज एक्टिविटीज इट एड्स वैल्यू इन द फाइनल प्रोडक्ट. ये हमें हेल्प करता है in determining the price of the product, and it also helps us in finding out whether we are really adding significant value in the product or not. अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, by the way, Michael Porter is responsible for developing this model, और उनका बड़ा रिसर्च है इस पे वैल्यू चेन एनालिसिस पे. माइकल पोर्टर ने स्टडी करके हमें बताया that every organization, by the way, this is more focused on manufacturing. Services के लिए थोड़ा different हो जाएगा. In every manufacturing organization, when they purchase their raw material, they have to pay for certain logistics. Michael ने कहा that these payments that you pay in order to bring the raw materials to your factory site, these are called inbound logistic costs. Let's say
आपने आपकी फैक्ट्री अज्यूम करते हैं कराची में है और इसका आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया मे बी मलेशिया से। अब वो जो मलेशिया से आपने परचेज किया उसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्रेट होगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल शिप होगा, चलेगा, आएगा, पोर्ट पे उतरेगा, ड्यूटीज पे करेंगे, चलता फिरता वो आपकी फैक्ट्री तक पहुंचेगा। सो वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग in order to bring the raw material right from the supplier to your factory, वो सब कॉस्ट कहलाएगी इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। और ये द मोमेंट रॉ मटेरियल आपके पास पहुंचा उसके अंदर वो कॉस्ट तो ऐड इन एनी केस हो गई। जब इससे एक स्टेप आगे चले तो हमने कहा कि अब ये जो रॉ मटेरियल्स, मल्टीपल रॉ मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास आमतौर पे होते हैं, दे देन कन्वर्ट देम इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट थ्रू सर्टेन ऑपरेशंस, थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें आप बेसिकली फिजिकल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट चेंज करते हैं। अगर आप एक शुगर मिल में जाएं तो शुगर मिल बहुत सारे खेतों से गन्ना जमा करके एक जगह लेके आती है और फिर उसको क्रश करके उसका जूस निकालती है, उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाती है। एंड देन आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस द जूस इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग दैट इज कॉल्ड शुगर। ये जो ऑपरेशंस हैं ऑब्वियसली इनकी भी एक कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ नहीं है। देयर इज ऑब्वियसली सम एनर्जी कॉस्ट, देयर इज ऑब्वियसली सम मटेरियल्स कॉस्ट, देयर इज प्रोसेसिंग कॉस्ट, फ्यूल इसमें यूज होगा, लेबर यूज होगी इसके अंदर, और ये सारी चीजें अब क्या हो रही हैं, अब उस प्राइस में ऐड हो रही हैं जो आपने रॉ मटेरियल पे ऊपर खर्च की थी और उसको लाने पे खर्च की थी। माइकल पोर्टर ने कहा कि कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। वंस यू हैव प्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट, then the next challenge is to provide that to the customer. That is, आपने कहा कि भाई हम let's say हम कहते हैं कि हमने एक हम टी शर्ट्स बनाते हैं और हम टी शर्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब टी शर्ट्स बन गई तो अपनी फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने का जो 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 कॉस्ट है वो आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आते हैं। दैट्स ऑल्सो एडेड इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर हमारी कोई सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट है, हम कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हम हमारी इफ देयर इज एनी पर्सनल सेल्स टीम दैट वी हैव, तो उसकी कॉस्ट भी इन एनी केस प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड हो जाती है। बाय द वे, हम प्रोडक्ट्स के ऐड देख के खुश बहुत होते हैं, कितने अच्छे अच्छे ऐड हमें दिखते हैं, सुपरस्टार्स उसमें दिखते हैं, बाद औक़ात सुपरस्टार्स उसमें दिखती भी हैं। हाउएवर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सब की कॉस्ट मैं और आप ही पे करते हैं। व्हेन वी सी कि पेप्सी के एड्स में हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स नज़र आते हैं और हम बड़ी खुशी खुशी उनको देखते हैं और फॉलो करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, पेप्सी की बॉटल जब आप खरीदते हैं तो उस एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट उसमें शामिल होती है। सो वी आर द वंस हु आर पेइंग फॉर दैट, राइट? बिकॉज वो वैल्यू एडिशन जो है वो इन एनी केस प्रोडक्ट की प्राइस में शामिल हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज सपोर्ट एक्टिविटीज। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं दुनिया में जिनको आप सेल्स के बाद आपको उसमें बैकअप सपोर्ट भी देनी पड़ती है। याद रखिएगा, इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी डिटर्जेंट्स और टूथपेस्ट और ये शामिल नहीं होते। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, मसलन टेलीविजन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एयर कंडीशनर्स। इसमें सर्विस का एक फैक्टर आता है, डिटर्जेंट के साथ सर्विस नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि आप सर्फ एक्सेल खरीद के घर ले जाएं, कपड़े धोने हम किसी को भेज देंगे, वो यहाँ पे शामिल नहीं होगा। सो जब आप वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि सबसे पहले हम एक कॉस्ट ऐड होती है हमारे पास इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की, दैट इज टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल्स टू योर फैक्ट्री। देन देयर आर सम ऑपरेशंस, उसकी एक कॉस्ट ऐड हो जाएगी। देन देयर आर सम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी फिनिश प्रोडक्ट को अपने यहाँ से कस्टमर तक पहुंचाने की कॉस्ट। एंड उसके बाद हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग, और अगर कोई सर्विस उसमें बैकअप सपोर्ट शामिल है तो उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। ये जो मैंने 4-5 एक्टिविटीज आपको बताई, हम इनको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, बिकॉज दीज एक्टिविटीज कैन बी वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड देयर कॉस्ट कैन बी वेरी क्लियरली कैलकुलेटेड ऑन अ पर यूनिट बेसिस। अगर आप उस डायग्राम को देखें जो माइकल पोर्टर ने एक्सप्लेन की फॉर द वैल्यू चेन एनालिसिस, तो उसमें आपको टॉप लेवल पे कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज भी दिखेंगी। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज उसने हॉरिजॉन्टली दिखाई हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज के जितने बॉक्सेस हैं वो उन सब के ऊपर इक्वली वो उनका वेट इक्वली शेयर्ड है। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज विल इन्फ्लुएंस ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी
इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, अगर हम एक फैक्ट्री लगाई हुई है और वहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, 500 लोग काम करते हैं, एक हेड ऑफिस है, उसकी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी. दिस कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड समवेयर. सिमिलरली आपकी कोई टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी होती है. टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्या है कि समटाइम्स यू डेवलप और समटाइम्स यू यूज सर्टेन part of technology or you invest on research on technology, and that is also included in the value chain, though it's indirect, it's secondary, but it is also added in the value chain. Secondary costs में हमारे पास infrastructure आ गया, इसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आ गई, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम R&D की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, एंड इसके साथ साथ हमारे पास इसमें प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आ गई. प्लीज रिमेंबर, प्रोक्योरमेंट में हम यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट और उसके साथ साथ जो हमारे बाज़ औक़ात हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उसकी प्रोक्योरमेंट भी इसमें इंक्लूड की जाती है, बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ समथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर मेकिंग. Along with all that, there is some cost of human resource as well, which is also distributed across the value chain. Now, based on this, हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल आया उसकी कॉस्ट क्या थी. लेट्स से हमने एक रॉ मटेरियल खरीदा जो मे बी, अगर हम फिर से एक शुगर इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, तो एक शुगर फैक्ट्री जो गन्ना खरीदती है उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट वो पे करते हैं. उसके बाद उसको कन्वर्ट करके जब वो एक फिनिश प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट बनती है वो एक्चुअली वैल्यू एडिशन है. अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो गन्ना आया वो लेट्स से 10 रुपए किलो है. हम ये अज्यूम्ड कॉस्ट है, इससे ज़्यादा है कॉस्ट इसकी. 10 रुपए किलो अगर हमने गन्ना खरीदा और उसको हमने प्रोसेस करके चीनी में कन्वर्ट किया, तो इसके बीच में बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हुआ, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी डेवलप इसमें इन्वॉल्व हुई, एंड ऑब्वियसली बहुत सारा इसमें केमिकल्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए. जब ये 10 रुपए का गन्ना कन्वर्ट होके चीनी में कन्वर्ट हुआ तो फिर इसकी जो कॉस्ट होगी वो 10 रुपए नहीं होगी, वो शायद 12, 14, 15, 16 रुपए होगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच शुगर इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड. ये जो एडिशन है ये बेसिकली वैल्यू चेन के थ्रू है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन वैल्यू चेन, और हमारे लिए ये समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन, वो कौन से हमारे स्टेप्स हैं इस वैल्यू चेन में जो ऐसी वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो हमारे लिए क्रिटिकल है. इफ यू कैन रिकॉल, हमने पिछले चैप्टर्स में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की बात की थी और हमने कहा था दैट दीज आर द थिंग्स विच आर वैल्यूड बाय आवर क्लाइंट्स. सो क्या हमारे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, क्या हमारे ऑपरेशंस, या हमारी सर्विस, या हमारी मार्केटिंग, वो कौन से एरियाज हैं जो हमारे लिए क्रिटिकल हैं. सो वैल्यू चेन में हम फिर उस पर उतना ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे, उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे. वैल्यू चेन ऑल्सो हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग अवरसेल्व्स विद अदर कॉम्पिटिटर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी फैक्ट्री की हम अज्यूम करते हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट है, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमारा कॉम्पिटिटर वही चीज़ 8 रुपए पर यूनिट में अपनी फैक्ट्री तक ले आता है, तो इसका मतलब यह है दैट कॉम्पिटिटर ऑफ योर्स हैज़ एन एज ओवर यू and you need to do something about it. It's a threat. इसी तरह से आप ऑपरेशंस की भी बात कर सकते हैं, इसी तरह से आप सेल्स एंड मार्केटिंग की भी बात कर सकते हैं. सो वैल्यू चेन गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद आवर कॉम्पिटिटर्स. वैल्यू चेन के थ्रू हम एक काम और भी कर सकते हैं, और वो ये है कि हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इसमें से कौन से प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके हम उसको अपना सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना लें. अब यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्चुअली है क्या. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द एज that an organization has over its competitors because of some features, because of some brand value, because of some qualities that their product or their service has. हम कुछ भी कर लें, हम
मर्सिडीज बेंज की कार्स को लो क्वालिटी कार कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते. यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव ब्रांडेड देमसेल्व्स और उन्होंने ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एनी केस अपने कॉम्पिटिटर से ले लिया है कि अब जब कभी मर्सिडीज कुछ भी बनाएगा, लोग कहेंगे कि नहीं, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी होगी इनकी, जो भी ये चीज़ बना रहे हैं होगी ठीक ठाक. सो ये वो कॉम्पिटिटिव एज है जो मर्सिडीज को हासिल है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स. सो जब हम वैल्यू चेन एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि विद इन द वैल्यू चेन हम कहाँ कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करके अल्टीमेटली हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं. नाउ वैल्यू चेन एनालिसिस हमने डिस्कस कर लिया एंड वी डिस्कस दैट वैल्यू चेन हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग अवरसेल्व्स विद द कॉम्पिटिटर्स और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ कहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हैं. दिस ऑल्सो हेल्प्स अस in identifying the non-value adding activities if any of them are there in our processes. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना वैल्यू चेन आइसोलेशन में रन नहीं कर सकती. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है that there is always a connection with the environment. There is always someone before the value chain of the organization and there is always someone at the end of the value chain. So every organization has its value chain which is connected to other organizations. Now, when we are talking about the whole supply chain as we were discussing earlier, if we start from the raw material supplier down to the consumer, there are a number of value chains which are connected in series with each other. And if we look at it as one, we call that value network. Within the value network, there are always exchanges taking place. Some of them are called, these exchanges, some of them are called tangible value exchanges and some of them are called intangible knowledge exchanges. ये है क्या? Let's take a look. Whenever an organization is buying something from its suppliers, obviously it's a tangible value exchange. You give some money and you buy some raw material. So it's an exchange and obviously there will be some documentation taking place as well. So जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, you give them a purchase order, you make some payments and you receive the goods and there is some documentation again and you then receive an invoice as well and you clear the dues. So whenever within the value network there is some kind of a goods or some kind of products exchanged, there is some documentation involved and obviously there is some money involved as well. So these kind of exchanges which are taking place within the value network, they are called tangible value exchanges. Other than these tangible value exchanges, there is a lot of knowledge sharing that goes on within the value network. For example, जब एक supplier आपके पास अपनी product लेके आता है, तो वो साथ में आपको informally अपनी product के features भी बताता है, वो कैसे best use हो सकती है वो भी बताता है और उसमें आने वाले कुछ मसाइल का भी discussion आपके साथ कर सकता है. इसी तरह से when you give your product to your customer, you also share some knowledge. You also tell them what to do and what not to. And obviously, this knowledge share is usually not documented. So it remains intangible. So intangible knowledge exchanges also take place within the value network. So जब हमने बात की value chain की, तो उसके साथ हमें value networks का भी हमें concept clear हो गया. That is, the collection of all value chains within an industry basically form something which is called value network. And within value network, हमारे पास दो किस्म के exchanges हैं. एक को हम कहेंगे tangible value exchanges और दूसरे हैं intangible knowledge exchanges. Value chain का जिक्र किया तो हमारा पर्पस क्या था? To find out कि हम क्या क्या कर सकते हैं in order to improve our products and in order to give better value to our customers. But with this, at the same time, एक चीज़ और हमें चूज करनी है. ये हमारा मैटर है स्ट्रेटेजिक चॉइस का. वो क्या है कि हम किन बेसिस पे compete करेंगे. compete करने के लिए अगेन हमें माइकल पोर्टर की हेल्प चाहिए. माइकल पोर्टर ने हमें बताया that there are three generic policies that you can adopt. यानी in order to compete with the industry, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन is to be the cost leader, which means that you have to produce whatever you are producing at the minimum possible cost.
जब आप ये कर लेते हैं, इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एट अ लोअर कॉस्ट, तो आपके पास ये एडवांटेज होता है कि आप कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में अपनी प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेच सकते हैं. This gives you an advantage over others because your product will become more, attractive to a larger segment of the market because you will be selling at a lower price. However, there are certain organizations जो इस philosophy पे या इस model पे believe नहीं करती. माइकल पोर्टर ने जो दूसरा ऑप्शन दिया उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. पहला हो गया टू बी अ कॉस्ट लीडर, द अदर वन इज टू बी अ डिफरेंशिएटेड प्लेयर. इसका मतलब क्या है कि अब आप कहेंगे कि नहीं जी, हमारी प्रोडक्ट सबसे सस्ती तो नहीं है, बट इट हैज सम फीचर्स विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. आप अगर टेलीविजन देखते हो, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स, तो आपको इसमें कुछ ऐसे शैम्पूज नजर आते हैं जो ये कहते हैं कि 30 रुपए में पूरे महीने का शैम्पू ले लीजिए. वो ये नहीं बताते कि इससे आपके बाल लंबे होंगे, सिल्की होंगे, स्याह होंगे, ये होगा वो होगा. नो नॉनसेंस. सिंपल. यू कैन गेट अ बॉटल ऑफ शैम्पू फॉर 30 रुपीज. व्हाट आर दे फोकसिंग ऑन? दे आर फोकसिंग ऑन कॉस्ट. दे आर टारगेटिंग द मार्केट विच वैल्यूज अ चीपर प्रोडक्ट. ये वो लोग हैं जिनको शैम्पू तो चाहिए, बट दे डू नॉट वांट टू स्पेंड अ वेरी हैवी अमाउंट ऑन दैट. So they are ready to compromise on the quality and the features of the product. So आपको ऐसी बहुत सारी products market में मिलेंगी which are sold on the basis of its price, and the people who are following this strategy are actually trying to follow the cost leadership approach. How can we forget Suzuki when we talk about cost leadership? Their primary focus is on producing economical cars. So they know that people buy their product not because of the features but because of the economy that they offer. इसी तरह से जब हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारे पास, हम वापस शैम्पू की एग्जांपल पे चलें तो हमारे पास सनसिल्क है, हमारे पास और ऐसे पेंटीन टाइप के शैम्पूज मौजूद हैं जो आपको प्राइस पे नहीं, अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स पे कन्विंस करते हैं. यू लुक एट देयर एडवर्टाइजिंग, दे विल नेवर से दैट वी आर द चीपेस्ट शैम्पू अवेलेबल. दे विल ऑलवेज से दैट ओके, व्हेन यू यूज दिस तो आपके बालों में ये क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो व्हाट आर दे प्रमोटिंग? दे आर प्रमोटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ देयर प्रोडक्ट. सो दिस इज द second approach which is actually introduced by Michael Porter. Michael Porter ने एक तीसरा ऑप्शन भी दे दिया. उसने कहा कि there is always a possibility of focusing on a small segment of the market and become a focused differentiated player in the market. अब आप सोचेंगे इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? देखिए, दुनिया में कितने सारी कंपनीज गाड़ियां बना रही हैं, हजारों किस्म की गाड़ियां बन रही हैं, लेकिन देयर आर अ फ्यू कंपनीज जो कहती हैं कि जी हम साल में 500 से ज्यादा गाड़ी नहीं बनाएंगे. डू यू नो फेरारी डज नॉट मेक मोर देन 500 कार्स अ ईयर. दे कैन मेक 1000, दे कैन मेक 10,000 इफ दे वांट, बट वो कहते हैं कि नहीं जी हम कम गाड़ी बनाएंगे, बहुत थोड़ी सी, इट विल बिकम अ स्टाइल स्टेटमेंट, और उसको बहुत महंगा बेचेंगे. यही एग्जाम्पल रोल्स रॉयस पे भी फिट होती है, बिकॉज रोल्स रॉयस भी नंबर ऑफ कार्स नहीं बेचता. वो ये नहीं कहते कि जी बाय अवर कार बिकॉज इट हैज अ ग्रेट सस्पेंशन सिस्टम. नोबडी बायज रोल्स रॉयस बिकॉज इट हैज फ्यूल इकोनॉमी. नोबडी बायज रोल्स रॉयस बिकॉज इट हैज अ वंडरफुल इंजन. पीपल बाय दैट बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, बिकॉज रोल्स रॉयस हैज फोकस्ड ऑन अ वेरी स्मॉल नीश ऑफ द मार्केट, और उन्होंने कहा जनाब अपर क्लास का एक बहुत एक्सक्लूसिव सा पोर्शन हम कवर करेंगे और हम उसको हाई प्राइस प्रोडक्ट देंगे. ये क्या है? ये हमारा तीसरा ऑप्शन है. अब इस अप्रोच को कुछ गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी यूज कर रहे हैं, फोकस डिफरेंशिएशन को, जो बड़े एक्सक्लूसिव सूटिंग्स बनाते हैं. देयर आर सम इटालियन कंपनीज जो बहुत लिमिटेड लोगों को सूट्स बना के ऑफर करते हैं. There are certain companies जो shoes manufacturers हैं, but they make shoes only for a limited number of people. तो इनकी अप्रोच क्या है? Focused differentiation. Let's conclude this. हमने कहा कि हमारे पास 3 approaches हैं with the help of which we can compete. Either we have to become a cost leader, जिसके लिए हमें अपनी price control रखनी पड़ेगी, हमें अपनी cost पे बहुत काबू रखना पड़ेगा. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास differentiation, जिसमें हम अपनी product के
फीचर्स को प्रमोट करेंगे एंड विल ट्राई टू कन्विंस द मार्केट टू बाय आवर प्रोडक्ट नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट बिकॉज ऑफ द फीचर्स दैट वी आर ऑफरिंग। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है फोकस डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम बड़ी मार्केट को टारगेट नहीं करेंगे, विल ओनली से दैट विल सेल अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स एंड विल सेल दैट टू अ वेरी एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल। अगर हम इनकी मजीद एग्जांपल्स की बात करें, आपने पाकिस्तान में मित्सुबिशी के एयर कंडीशनर्स का नाम सुन रखा होगा, मिस्टर स्लिम एक्सट्रीम। आपने कभी उसके नाम के साथ प्राइस टैग देखा है? कभी भी एडवर्टाइज नहीं करते वो। दे नेवर एडवर्टाइज द प्राइस टैग। व्हाई? बिकॉज दे आर एन एक्सपेंसिव ब्रांड इन पाकिस्तान। Please remember, they are not going for focused differentiation here, but what they claim is that this air conditioner of ours is smaller in size, it's it consumes less electricity and it gives you better cooling, right? So what are they focusing? They are focusing on the fact that their product is better than the rest of the products available in the market. अगर आप focus की बात करें तो नोकिया और मोटोरोला के कुछ एक्सक्लूसिव सेट्स आते हैं। नोकिया का एक सेट आता है जिसमें स्लाइड उसके अंदर अवेलेबल होती है और उस स्लाइड में जो उन्होंने बेयरिंग लगाए हुए हैं वो फेरारी से परचेस करते हैं। नाउ दैट सेट इज इक्विवेलेंट, उसके जो फीचर्स हैं अदरवाइज दैट्स इक्विवेलेंट टू एनी अदर ऑर्डिनरी सेट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, बट उसका जो लुक है, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग हुई हुई एंड ऑल दैट मेक्स इट एन एक्सक्लूसिव सेट। वो बनाते भी वो बहुत थोड़े से हैं, बहुत कम तादाद में बनाते हैं एंड दे सेल दैट एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें ये पहला फैसला ये करना होता है एज अ मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ किस तरह compete करने जा रहे हैं, और माइकल पोर्टर ने इसमें हमें काफ़ी तफसील से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अनदर एरिया विच इज़ रिलेटेड टू द Porter's generic strategies is strategy clock. Strategy clock basically helps us in identifying what combination of price and quality is to be chosen by us. This is also a matter of strategic importance and we'll take a detailed look at that. So my dear friends, when we are talking about the competitive strategies and we are discussing that we have the option of cost leadership or डिफरेंशिएशन और फोकस डिफरेंशिएशन, हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी क्लॉक। दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ क्लॉक बट दिस लुक्स लाइक अ क्लॉक, सो इसका नाम स्ट्रैटेजी क्लॉक रख दिया गया है। इसमें हमने जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, यू कैन सी दैट हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया जनाब प्राइस को। जितना आप राइटवर्ड मूव करेंगे उतनी प्राइस बढ़ेगी इसमें। ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज द वर्टिकल एक्सिस, we have the perceived value or the perceived quality of the product. So जितना हम vertical axis पे ऊपर की तरफ move कर रहे हैं, the quality, the expected quality या perceived quality is rising. अब इस clock में as an organization हमारे पास बहुत सारे options हैं। हम कहीं से भी अपने आप को इस clock में fit कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। There are organizations जो कहती हैं कि जी हम बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करेंगे मार्केट को, समथिंग विच विल ऑफर देम द बेस्ट वैल्यू फॉर देयर मनी बट विच विल नॉट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा विद इट। बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अब से कुछ अर्से पहले एक गाड़ी लॉन्च हुई जिसका नाम था टाटा नैनो। सबसे सस्ती गाड़ियों में से आती है, वो छोटी सी गाड़ी थी, उसके अंदर 4 पहिए थे, एक इंजन था, कुछ सीटें भी लगी हुई थी, चलती हुई थी, सब ठीक है, बट इट वॉज कॉस्टिंग हार्डली 110,000 रुपीज और समथिंग। What was the idea? The idea was basically to sell a car that works and looks like a car but does not offer anything else. ऐसी प्रोडक्ट जो अपना बेसिक काम तो करे लेकिन उसके अलावा कुछ भी ऑफर ना करे, उसको हम कहते हैं नो फ्रिल्स प्रोडक्ट। सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो लो प्राइस पे लो क्वालिटी के साथ यानी परसीव्ड वैल्यू लो के साथ आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं और हम इन कंपनीज को कहते हैं कि ये नो फ्रिल अप्रोच पे हैं। देयर आर सर्टेन एयरलाइंस विच डू दैट। अगेन नो फ्रिल को समझिए, नो फ्रिल है क्या? जिस तरह से आप एक किसी शादी में जाते हैं
वहाँ पे एक टेबल होती है, बहुत सारी टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के ऊपर कवर होते हैं, उसके साइड में फ्रिल भी लगी होती है, या वही वाली जिससे लोग हाथ भी पोंछ लेते हैं। एग्जैक्टली। नाउ उस फ्रिल को अगर हम उस पे से हटा दें तो क्या उस मेज का जो पर्पस है, द एक्चुअल पर्पस ऑफ हैविंग दैट टेबल, क्या उसमें कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। अच्छी नहीं लगेगी, खूबसूरती उसकी कम हो जाएगी, बट द फंक्शन द टेबल इज सपोज टू गिव, इट विल स्टिल गिव दैट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने उसमें उस टेबल पे फ्रिल लगाई तो उससे उसकी खूबसूरती बढ़ी, फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से जब आप एक कार खरीदते हैं तो बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू राइड ऑन एंड टू ट्रैवल ऑन, राइट? उसके अंदर एडिशनल किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है फॉर दिस बेसिक पर्पस। उसमें एसी, उसमें डेक, उसमें एलॉय रिम्स, उसमें दिस एंड दैट, दिस इज ऑल फ्रिल। सो अल्टीमेटली व्हेन यू आर बाइंग अ कार, you are actually interested in a basic piece. So there are people in the market जिनको एक basic product चाहिए होती है और वहाँ पे no frills आ जाता है। कुछ ऐसे टूथपेस्ट आपको मिलेंगे जिनमें कोई खास क्वालिटी नहीं है, बस वो एक पेस्ट है जिसको आप ब्रश पे लगाएं तो आपके दांत साफ हो जाएंगे। That's no frills। अब इसका एक बेहतर वर्जन है जो इससे ऊपर आपको दिख रहा है, जहां पे हम कह रहे हैं लो कॉस्ट। There are companies जो कहती हैं कि हमारे पास जो नो फ्रिल्स वाली प्रोडक्ट है वो तो इन एनी केस अवेलेबल है, क्यों ना हम इसी प्राइस रेंज में रहते हुए, वेयर द बेसिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑफर्ड, हम थोड़ी सी बेहतर वैल्यू ऑफर कर दें, हम कुछ फीचर उसमें इंप्रूव कर दें, राइट? तो फिर क्या होता है कि कंपनीज उसमें कोई एक आध ऐसी एडिशन कर देती हैं जिससे उसकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है, लेकिन लोगों के लिए उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, लोग उसको थोड़ा सा एक नो फ्रिल के मुकाबले में बेहतर प्रोडक्ट परसीव करने लगते हैं। अगर आप दुनिया में देखें तो देयर आर नो फ्रिल एयरलाइंस अराउंड, ठीक है? मैं अभी नो फ्रिल और फिर आपको लो कॉस्ट पे लेके आता हूँ। नो फ्रिल एयरलाइंस वो होती हैं, जैसे इस वक्त flydubai.com है, फ्लाई दुबई नाम की एक एयरलाइन है, वो आपसे कहते हैं कि जी हमारा सबसे सस्ता टिकट है, प्लेन्स भी छोटे हैं उनके, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा सामान है जो आप केबिन में रख के नहीं ले जा सकते तो उसके पैसे अलग होंगे। दे डू नॉट ऑफर एनी स्नैक्स और एनी मील ड्यूरिंग द फ्लाइट, और अगर आपको चाहिए हो तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। क्यों? बिकॉज यू डू नॉट ट्रैवल बिकॉज ऑफ द मील। वो कहते हैं कि जी ये जो है ये फ्रिल है, ये एडिशनल है, जो बेसिक आपको पर्पस चाहिए वो ये कि आप जहाज में बैठे और आपको दूसरी जगह तक वो जहाज पहुंचा दे, दैट्स द बेसिक सर्विस। अब उसके मुकाबले में जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है वो नो फ्रिल के मुकाबले में थोड़ी सी फैसिलिटी बेहतर देंगी। जो लो कॉस्ट एयरलाइन है वो कहेगी अच्छा ठीक है, हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे, हम आपको कोई स्नैक्स सर्व कर देंगे, आपको हम 20 किलो सामान ले जाने की परमिशन नहीं देंगे, बट यू कैन गेट 1 पीस ऑफ 10 kg विद यू। सो क्या किया उन्होंने कि थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर प्रोडक्ट करके और थोड़ी सी उसकी प्राइस ऊपर करके नो फ्रिल से बेहतर कर दिया। अगर आप पाकिस्तान की कार मार्केट की बात करें तो इन माय ओपिनियन मेहरान का जो सबसे बेसिक VX मॉडल है, जो फ्लैट कार है, बस उसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, वो नो फ्रिल्स की एग्जाम्पल बनती है पाकिस्तान में। लेकिन उसी के ऊपर मेहरान ही का वर्जन आ जाता है जिसमें वो CNG भी लगा देते हैं, उसमें वो AC भी लगा देते हैं, एंड उसमें वो जो है वो मुख्तलिफ कलर्स भी ऑफर कर देते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो फिर लो कॉस्ट में चला जाता है। स्टिल दैट इज द चीपेस्ट, दैट इज चीपर देन अदर competitors in the market, but still it is relatively expensive than the no frill version of the same product. अब इससे ऊपर आइए, इससे ऊपर क्या है जनाब? इससे ऊपर है हाइब्रिड। हाइब्रिड को समझने से पहले हम अगर इससे अगला वाला जो 12 बजे वाले टाइम पे जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है डिफरेंशिएशन। पहले हम डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं, देन विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, और देन आई विल बी एबल टू बेटर एक्सप्लेन दिस हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएट अगर आप इस क्लॉक में देखें तो इट्स एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, परसीव्ड क्वालिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट whatever product quality we are offering, ये उसमें आप हाईएस्ट लेवल पे हैं। अच्छे फीचर्स, अच्छे उसके as whatever quality the customers expect वो उसके अंदर ठीक ठाक होंगी, एंड इसकी प्राइस भी बेहतर होगी बाकियों से। It is expensive, then obviously the no frills, low cost and hybrids, और इसकी क्वालिटी भी बेहतर है। ये वो कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्ट इस वजह से नहीं बेची जाती
कि वो सस्ती हैं. These are the products or these are the companies which sell their products on the basis of the features that they have. So what is important for them? For such kind of companies, differentiation from others is important. Differentiation on the basis of what? On the basis of the features, qualities and the experience that you are talking about. अब अगर ऑटोमोबाइल में फिर से चलें, कार्स में आए, तो यहाँ पे आपको कंट्री टू कंट्री वेरी करता हुआ दिखेगा. अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस कैटेगरी में होंडा आएगी, इस कैटेगरी में टोयोटा आएगी, बिकॉज पाकिस्तान में यही दो मेजर बड़े ब्रांड्स हैं जो सेल होते हैं अदर देन सुजुकी. सुजुकी डज नॉट फॉल इन दिस डिफरेंशिएशन वाली प्रोडक्ट वो नहीं बना पाते. इसी तरह अगर आप बाहर वाली मार्केट्स को देखें और इसी कैटेगरी में रहें हम, तो हमें दिखेगा दैट देयर आर दीज मर्सिडीज एंड BMWs एंड ऑल दैट, दे आर डिफरेंशिएटेड. दे डू नॉट सेल their product because they are cheap, but they sell because they are expensive, because they are a status symbol, they have luxury, they have other so many qualities. FMCGs पे आ जाइए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे. अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास डिटर्जेंट्स में कई कैटेगरीज हैं. सारे डिटर्जेंट्स एक जैसे नहीं हैं, इनमें फ़र्क है थोड़ा थोड़ा. फॉर एग्जाम्पल सर्फ एक्सेल is competing with what? Surf Excel is competing with Ariel. Surf Excel is competing with Bright. क्योंकि इनमें इनके फीचर्स भी मिलते जुलते हैं, इनकी प्राइसिंग भी मिलती जुलती है. इफ़ यू कैन रिकॉल, हमने स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स की एक जगह पे बात की थी चैप्टर 2 में. ये स्ट्रैटेजिक ग्रुप इनका एक बनता है. बट दे सेल देयर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि इससे ज़्यादा कपड़े धुलेंगे, इससे अच्छे कपड़े धुलेंगे. अगर आप एरियल की कैंपेन्स देखें तो वो आजकल क्या साबित कर रहे हैं, वो उसमें मुख्तलिफ ख़वातीन आके ये बता रही होती हैं कि अब तो हम एरियल को छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज इट हैज़ सर्टन फीचर्स, इससे मेरे कपड़े इतने अच्छे धुले, ये हो गया राइट. वो कहीं पे ये नहीं कहती कि मैं एरियल इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि सबसे सस्ता है. ऐसे ही है ना. अब आइए हाइब्रिड पे. डिफरेंशिएशन में खास बात क्या हो गई? दैट यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट और पीपल आर बाइंग योर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स. लो कॉस्ट में वी नो दैट पीपल आर बाइंग माई प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट. अब इनके बीच में आ गया हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या है कि कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएटेड जैसी अच्छी नहीं है, उसके अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं है, हाउएवर वो लो कॉस्ट से इन एनी केस बेहतर है. अगर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मार्केट में रहें तो जो हमारे पास कल्टस और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो ऑल्टो है वो बेसिकली हाइब्रिड में आती है. इट इज़ इन एनी केस बेटर देन द बेसिक मेहरान, बट इन एनी केस इट कैन नॉट कम्पीट विद एनी ऑफ द बिग राइवल्स. इट कैन नॉट कम्पीट विद कोरोला, इट कैन नॉट कम्पीट विद सिटी और सिविक फॉर दैट मैटर. सो देयरफॉर ये जो बीच वाली कैटेगरी है ये लो कॉस्ट से बेहतर वैल्यू देती है, लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के साथ कंपीट नहीं कर पाती. अगर हम वापस डिटर्जेंट की एग्जांपल में चलें तो मेरी नॉलेज के मुताबिक एक्सप्रेस, अगर आप उसके एड्स देखें तो वो कहता है कि जी ठीक है, जो कपड़े भले, वो चक्कर वाला एक ऐड है उसमें कि जनाब हमारे जो वॉशिंग मशीन के चक्कर हैं वो भले थोड़े ज़्यादा लगेंगे, हाउएवर पैसे कितने कम है, 65 रुपये कम है जनाब, एक ऐड में उन्होंने बताया. What is the idea? The idea is that we are accepting in this ad that this product is relatively inferior than the other one, but we are still saying that it is still good enough to be sold and bought. So therefore ये एक हमारे पास ऑप्शन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गई हाइब्रिड की. सो डिफरेंशिएटेड के बाद देखिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्लॉक में अगला ऑप्शन क्या है? फोकस डिफरेंशिएशन. बट लर्निंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? देखिए अब आप याद कीजिए, हमने कहा था कि फोकस डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस दैट वी हैव इन ऑर्डर टू compete, whereby we focus on a small group of people and we tell them that okay, this is the best possible product available for this particular purpose. हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ने फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी ली and these products have become status symbols. So people buy these products not because they have features, not because they serve them well, but because they are status symbols. Please remember, you do not buy a Rolls Royce because it has a wonderful suspension or it has an amazing engine or उसका कलर बड़ा खूबसूरत है. जी नहीं, you buy a Rolls Royce because it's a symbol of status. अब आप इस क्लॉक पे देखिए, प्राइस वाइज the focus differentiation products are on a much higher side compared to the differentiated products.
However, अगर आप इनकी perceived quality देखेंगे तो quality wise differentiated से नीचे हैं ये. So there is a bright possibility that a focused differentiation product may not have very good features, but it will still be an expensive product because people will be buying it not for the features that it has, but people buy these products because they are style statements. अब आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं इसकी. नोकिया के कुछ सेट्स हैं, आई कैन रियली रिकॉल द राइट नंबर, मेरा ख्याल है 8800 नंबर है उसका जो स्लाइड है उसमें वो कहते हैं जी उसमें जो बेयरिंग यूज हुआ हुआ है वो फेरारी का बना हुआ बेयरिंग है, एंड इट रियली हैज़ अ गुड स्लाइड, इट लुक्स गुड फ्रॉम फार. बट उसके फीचर्स एक 5000 8000 में जो आज सेट मिलता है उसके फीचर्स जैसे हैं. उसमें कैमरा नहीं है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें नहीं हैं जो आज की एक आम सेट में होती हैं, बट स्टिल दे सेल इट एट अ हाई प्राइस. इसी तरह से हम कुछ ऐसे हमारे टेलर्स मौजूद हैं अराउंड द वर्ल्ड जो इस तरह की क्लोथिंग और इस तरह के बाद शूज़ बनाते हैं जो लाखों रुपए में बिकते हैं, और उनमें और कोई ख़ास बात नहीं है. अ सूट रिमेन्स अ सूट, हाउएवर इट्स अ स्टेटस सिंबल दैट यू हैव बॉट दिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेलर. सो अगर आप इसकी फीचर्स में जाएं तो आपको दिखेगा दैट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स are better in terms of their qualities and features, but because of the style statement, because of the status symbol, हम differentiated product के मुकाबले में जो हमारी focused differentiated products हैं उनके ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं. अब देखिए स्ट्रैटेजी क्लॉक में इसके बाद क्या है लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी विल फेल, ऐसे ही है. उसके बाद 2-3 जगह पे लिखा हुआ है, यानी अगर आप फोकस डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट से या फोकस डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट जितनी प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं एंड द क्वालिटी दैट यू आर ऑफरिंग इज इंफीरियर, हु विल बी देयर टू बाय योर प्रोडक्ट? कोई होगा ऐसा दीवाना जो आपकी वो इतनी महंगी प्रोडक्ट खरीदे जिसके फीचर्स, जिसकी सर्विसेज, जिसकी क्वालिटीज एक फोकस डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट से नीचे हैं, काफ़ी नीचे, यानी लो प्राइस के बराबर है, और फोकस डिफरेंशिएटेड जैसी उसकी प्राइस है. कोई भी नहीं खरीदेगा एक्सेप्ट फॉर अ मोनोपोली. इफ यू आर अ मोनोपोली, मे बी लाइक KESC, मे बी लाइक पाकिस्तान रेलवे, हाउ कैन वी फॉरगेट अवर फेवरेट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस. My dear friends, you can only survive with the remaining 3 possible options if you are a monopoly. आपके पास क्या ऑप्शन है अगर आप रेल के थ्रू सफ़र करना चाहते हैं? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? चलें रेल को छोड़ दें. आप इफ़ यू आर लिविंग इन कराची, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम KESC, whatever rate they may charge, right? Whatever quality that they offer, you can see what quality they offer. आपको बाय तो करना ही पड़ेगा, you don't have an option. So therefore ये जो इस स्ट्रैटेजी क्लॉक में जो बाकी 3 आपके पास लेवल्स हैं जिनमें प्राइस बहुत हाई है और जिनमें जो क्वालिटी है, परसीव्ड क्वालिटी, वो लो प्राइस, और नीचे वाले में देखें नो फ्रिल्स के बराबर है, तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी इलाके में एक मोनोपोली हो और आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो. So then you do whatever you feel like doing. Otherwise, this kind of a strategy for a commercial, competitive organization, simply it won't work. सिर्फ सरकार की सपोर्ट से आप इसको चला. So this brings us to a conclusion to the strategy clock, where we discuss the various strategic options that we have. We started off with no frills, moved up to low price, discussed the hybrid, और फिर हम चले गए differentiation, और finally हम आ गए focus differentiation पे, और फिर हमने वो पॉसिबल कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस भी देखे जो अदरवाइज काम नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड क्वालिटी कॉम्बिनेशन. सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द स्ट्रैटेजी क्लॉक, एंड आई होप यू हैव गॉट अ गुड आइडिया ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड अबाउट देयर प्राइस एंड क्वालिटी कॉम्बिनेशन. वी डिस्कस्ड अ टर्म competitive advantage. We discussed that organizations try to do something which gives them an edge over their competitors. Sometimes it's the cost, sometimes it's the quality of the product, and sometimes it's the brand image which gives an organization
an edge over their competitors. My dear friends, reaching at the top is difficult, but staying there is very challenging. बिल्कुल इसी तरह से organizations, once they get a differentiation, once they get something called competitive advantage, then it becomes a bigger challenge for them to sustain that in the long run. So what does this mean, sustaining competitive advantage? Let me share an example with you. आज से कोई 15-16 साल पहले पाकिस्तान में there were only two cell phone companies, Paktel and Instaphone. Unfortunately, both of them do not exist today. Paktel was the first company to launch cell phones in Pakistan, followed by Instaphone. And by mid-90s, Instaphone was the leader. Then a company called Mobilink came in the market, and they said that we have a better technology. They said that we are offering GSM technology. Initially, people said, so what? I mean, if you are offering GSM, who cares? They said, no, with the help of GSM, we can offer you better services. There are a lot of features that we can offer through GSM which were not available with Instaphone or Paktel. Gradually, GSM became the market norm, and Mobilink got a strategic advantage, a competitive advantage over their rivals because of their technology. Since Mobilink was offering a better technology, people moved towards Mobilink, and by year 2000-2001, Mobilink became a major player in the cell phone industry. Obviously, they crossed the market shares of Instaphone and Paktel. So they got the competitive advantage because of the technology. But what happened next? Then a few companies also, a few more companies entered into the market. Ufone, we all know, Varid and Telenor. Interestingly, they all are offering GSM. Now, the competitive advantage that Mobilink had at that time, that was the GSM technology, is no longer a competitive advantage. Why? Because every other company is also offering GSM. So now, Mobilink cannot ask its customers to buy its service because they are offering a superior technology. The same technology is offered by others as well. So the competitive advantage because of the technology is gone. Today, Mobilink is trying to maintain its superiority using some other tools, right? So getting an advantage over your competitors is one challenge, but then maintaining it is a greater one. अब इसमें डिपेंड ये करेगा इसके लिए क्या हमारे पास टूल्स हैं. They will depend on what kind of a strategy we have actually selected. हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि हमारे पास बेसिक दो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो हमें माइकल पोर्टर ने बताई कि या तो हम कॉस्ट लीडर बन जाएं, यानी हम प्राइस के ऊपर compete करने लगे एंड स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, या हम डिफरेंशिएटेड प्लेयर बन जाएं. अगर हम प्राइस बेस्ड हैं तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है दैट इज बेस्ड ऑन आवर लोएस्ट कॉस्ट, यानी हम सस्ती एक चीज बना के मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं, तो फिर हमें अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी. बाय द वे, with the entry of China in almost all industries, competing on price has become a very, very challenging issue, right? So if your organization is based on cost leadership, then these are some of the things that you have to do in order to maintain your superiority and strategic advantage. The first thing that you have to accept and tolerate is lower margins. When you are a cost leader, for sure you will be selling at a lower price, and when you sell at a lower price, you sell at lower margins. जब आप लोअर मार्जिन्स पे सेल करते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? बिकॉज अ स्लाइट इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, अ माइनर चेंज इन द ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैन एक्चुअली पुट यू इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो आपको इस चीज को बहुत सेंसिटिवली, बहुत ज़्यादा कॉशियसली मैनेज करना पड़ता है कि आपको
अपने कम थिन मार्जिन्स के साथ कैसे आपने चलना है. ऑल सच कंपनीज जो लो कॉस्ट को अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाती हैं, दे हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट. यानी कॉस्ट रिडक्शन के जो एक्शंस हैं वो कंटिन्यूअसली लेने पड़ेंगे. ऐसा नहीं होगा कि हमने जनाब एक मशीन लगाई उससे हमारी कॉस्ट कम हो गई, बस भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अगले 5 साल के लिए छुट्टी हो गई. यू हैव टू कंटिन्यूअसली स्ट्राइव for finding out new ways, new methods, new processes to explore and to find out how we can further reduce the cost, because that is the key to success in your case, in that particular situation. कुछ organizations ये भी करती हैं कि जब वो प्राइस पे compete कर रही हैं तो वो एक प्राइस वॉर विन करने की कोशिश करती हैं. यानी अगर 4-5 और प्लेयर्स हैं वो भी उसी मार्केट में वैसी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, देन दिस योर ऑर्गेनाइजेशन कैन एंटर इनटू अ प्राइस वॉर एंड ट्राई टू पुश योर कॉम्पिटिटर्स बैक टू द वॉल. इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर मार्जिन्स हो और अपनी प्राइस आप कम कर सकते हो तो आप इतनी प्राइस कम कर लेते हैं कि कॉम्पिटिटर्स उतने नीचे नहीं जा पाते, एंड यू अल्टीमेटली विन अ बिगर मार्केट शेयर. अगर आप इस वक्त सेलफोन इंडस्ट्री में देखें तो वहां पे भी 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं who compete on the basis of price. Mobilink is not the one, but you know that Zong is started off with price. Zong का focus जो है that is on the fact that they are offering lower cost services to the people. So उनका जो target रहेगा that will always be to remain at a lower cost, and जहां उनके competitors price कम करेंगे वो उससे ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे. How far they can go, that is not really predictable. ये कहना ज़रा मुश्किल काम है. ऐसी organizations जो price based strategies पे चल रही हैं, they always try to focus on market segments. I hope you understand market segments. They always focus on market segments where low price is valued. अभी हम Zong की एग्जाम्पल ले रहे थे. Zong is constantly focusing on lower income groups and students. You look at their advertising. आपको उसमें कहीं प्रोफेशनल्स, कहीं आपको लैंड क्रूजर्स, कहीं आपको गोल्फ कोर्स नहीं दिखाया जाएगा. Why? Because their focus is on youngsters. वो स्टूडेंट्स जो पॉकेट मनी के साथ चल रहे होते हैं, उनके आप बहुत बड़े बड़े बजट्स नहीं होते खर्च करने के लिए. एंड इफ यू लुक एट देयर पैकेजेस, उनका इंटरनेट का पैकेज देखिए, उनके कॉल रेट्स देखिए, वो सारे जो है उसी हिसाब से डिजाइंड है. सो सिंस Zong इज फोकसिंग ऑन अ स्ट्रैटेजी वेयर दे आर ट्राइंग टू बी अ लो कॉस्ट प्लेयर, उसी हिसाब से उन्होंने अपने जो टारगेट सेगमेंट्स हैं वो भी डिफाइन कर रखे हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द वेज दैट दे कैन रियली सस्टेन दैट पर्टिकुलर एडवांटेज. अगर आप एक डिफरेंशिएटेड प्लेयर हैं, यानी आपकी जो सेलिंग जो आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटीज़ या ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से लोगों को आपकी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, तो फिर आपको अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा. सोचिए क्या. हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंटिन्यूअसली ऑफर अ बेटर प्रोडक्ट देन द कॉम्पिटिटर्स. लेट मी शेयर एन एग्जाम्पल विद यू. Apple offered a wonderful desktop PC long time back, which was in any case far superior than the IBM compatibles. And then a revolutionary product was offered by Apple, which was called iPod. iPod actually changed a lot of things in the music industry. और Sony का एक जो brilliant product था, जो उनका hot selling product था, Walkman, उसको उन्होंने आके डिस्टर्ब कर दिया. बट प्लीज रिमेंबर, आईपॉड बनाने के बाद वो वहां पे रुके नहीं. ऐसा नहीं हुआ कि बस एक आईपॉड बन गया उसके बाद एप्पल ने आराम करना शुरू कर दिया. नो, दे कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड ऑन इंप्रूविंग दैट, एंड न्यूअर वर्जन्स वर ऑफर्ड वन आफ्टर अनदर. सो बाय द टाइम competitors were able to catch their old technology, they were already available, they were already there in the market with the next version. They are doing the same in phones as well. And then came the iPhone, right? iPhone brought a revolution in the touchscreen phone technology. इसी तरह से now they are talking about iPad.
iPad has changed a lot of things in the computing and communication technology, and a lot of other companies are also coming up with similar products. But by the way, who is leading? Apple, for sure. So in order to sustain that competitive advantage that Apple has today, they have to constantly invest on research and development. अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा कि आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो थोड़े अरसे के बाद ऑब्वियसली मार्केट में कॉमन होगी, उसको कोई ना कोई कॉपी करेगा एंड योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी इवेपोरेटेड. इसी तरह से एक काम आपको ये करना पड़ेगा टू सस्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू डिफरेंशिएशन, दैट यू हैव टू मेक कॉपीइंग डिफिकल्ट. अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आसानी से कॉपी हो सकती है, तो फिर उसको सस्टेन कैसे करेंगे आप? दिस विल बिकम a very complex or complicated situation. So at times इस तरह की उसमें टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं और उसमें आप लीगल सपोर्ट भी ले सकते हैं. उसमें आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं, जिसके थ्रू आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है फॉर अ सर्टेन पीरियड कि भाई ठीक है, ये इनकी इनोवेशन है, जो इस जैसी कोई और प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकती. What else you can do to sustain your competitive advantage? At times organizations try to bar or try to create barriers in the availability of certain raw materials or in the availability of certain people. For example, if there are certain people in my company who understand a certain technology, I'll make sure that these people should not leave my organization, so that whatever knowledge they have gained should not be transferred to the competitors. And obviously I have to maintain these people well. एक और आप काम कर सकते हैं और वो है switching costs. I hope you understand the term switching cost. Switching cost का मतलब ये होता है कि if you move from one product to another or from one system to another, there is some additional cost that you have to bear. आज से कुछ साल पहले, ये एग्जाम्पल आज वैलिड नहीं है, however I am sharing. आज से कुछ साल पहले अगर आपके पास एक सेल फोन नंबर होता था, अगर आप चाहें कि मैं अपनी कंपनी चेंज कर लूं और मैं लेट्स से मोबिलिंक से वारिद पे चला जाऊं, तो मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ता था. एंड दैट नंबर चेंज वाज नॉट रियली अ प्लेजेंट आइडिया, बिकॉज सारी स्टेशनरी, सारी डॉक्यूमेंट्स, हर जगह पे वो नंबर शेयर्ड होता था. विद नंबर पोर्टेबिलिटी, ऑल्दो ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, बट स्टिल दैट्स वन एरिया that needs to be that can be utilized in order to sustain competitive advantage. So in order to sustain competitive advantage, हमने देखा कि अगर हम if we are following price based strategies तो हम क्या करेंगे, और अगर हम differentiation focused हैं तो हम क्या चीज़ें करेंगे. Some organizations are using another unique idea to sustain their competitive advantage. हम इसको कहते हैं lock-in strategy. By the way, lock-in एक ऐसी चीज़ है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुमकिन नहीं है, but some organizations have developed their products in such a way that they become, a generic name in a certain industry. For example, you talk of a laptop, you talk of a microcomputer, which is a PC, and there is always Windows there as an operating system. This is understood. This is a generic, name that is always there. So operating system कौन सा होगा जी? Windows ही का कोई version होगा. So Windows may have n number of problems in it in the operating situations, but still it's a generic product and it's selling like a hotcake. इसी तरह से when we talk about sound systems, जितने बड़े आपको सिनेमाज मिलेंगे, जितने बड़ी आपको ऐसी situations मिलेगी जहाँ पे आपको sound चाहिए, वहाँ पे आपको Dolby का surround sound मिलेगा, Dolby के systems लगे हुए हैं. Why? Because it has become a generic product when it comes to sound systems. Microsoft ही का Internet Explorer भी एक generic product बन गया है when it comes to these web browsing. And although there are other products, competitive products available, लेकिन Explorer remains Explorer. So if you are in a situation or if you have a brand जो जेनरिक बन जाए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और लोग उसके बगैर उस काम को करने का सोच भी ना सकें, तो हम कहते हैं कि एक लॉक इन सिचुएशन है. इसमें से फिर कस्टमर्स के लिए निकलना ज़रा मुश्किल होता है और कॉम्पिटिटर्स के लिए इसमें एंट्री काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है. हाइपर का वर्ड तो आपने सुना ही होगा.
हम कई लोगों के मुताल्लिक कहते हैं कि वो बड़ा हाइपर है या वो बड़ी हाइपर है, समथिंग लाइक दैट। कुछ बच्चे भी हाइपर होते हैं, कुछ बड़े होकर भी हाइपर ही रहते हैं। हाइपर कंपटीशन का क्या मतलब होगा? अगर किसी इंडस्ट्री में कंपटीशन बड़ा फियर्स हो, बहुत लाउड हो और उसमें कांस्टेंट चेंज आ रही हो कंपटीशन में, देयर इज नो एंड टू दैट, तो हम कहते हैं कि उस इंडस्ट्री में इस वक्त हाइपर कंपटीशन सिचुएशन है। अगर अपने मुल्क की एग्जांपल लें तो आपके यहां इस वक्त सेल फोन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? देयर इज हाइपर कंपटीशन। एवरी नेक्स्ट डे you see a new campaign from various cell phone players, and they offer different rates, they offer different packages, they offer different kind of incentives to their potential customers and to their existing customers in order to grab the market share. By the way, हाइपर कंपटीशन की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा भी होता है, मसलन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को, लेकिन इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड इफ यू आर मैनेजिंग अ कंपनी विच इज इन अ हाइपर कंपटीशन सिचुएशन, तो आपके लिए आपकी जिंदगी काफी तकलीफ में गुजरेगी, बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर किसी भी वक्त कोई भी किसी भी किस्म की चेंज लाने के लिए तैयार हो सकता है। हाइपर कंपटीशन सिचुएशन में आपको सरवाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कई चीजें हैं जो इसमें की जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, दैट दे ट्राई एंड रीपोजिशन देमसेल्व्स ऑन द स्ट्रेटजी क्लॉक। अभी हमने कुछ देर पहले स्ट्रेटजी क्लॉक डिस्कस की थी। तो अगर आप स्ट्रेटजी क्लॉक में, लेट्स से यू आर अ डिफरेंशिएटेड प्लेयर एंड यू हैव फॉलन इनटू दिस हाइपर कंपटीशन, सो आपके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप डिफरेंशिएशन से वापस हो और हाइब्रिड पे आ जाए। रिजल्ट क्या निकलेगा? दैट यू विल बी एबल टू ऑफर योर प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस, which will help you in competing, although this will reduce your quality as well, but in a competitive situation आप ये एक काम भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? अब अगर आप, चले हम सेल फोन की बात कर रहे हैं, उसी एग्जाम्पल पे रहिए। इन 5-6 प्लेयर्स में जो इस वक्त मार्केट में फाइट कर रहे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इनिशिएटिव्स लेती हैं, वो नए पैकेजेस ऑफर करते हैं, वो नई स्कीम्स लेके आते हैं, और बाकी इंडस्ट्री फिर उनको फॉलो करती है। तो वो जिसने पहला इनिशिएटिव ले लिया, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाता है। एंड इन अ हाइपर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इससे थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हर वक्त इस टेंशन में रखते हैं, हर वक्त इस अनसर्टेनिटी में रखते हैं कि अगली चीज क्या आने वाली है। And obviously your competitors remain under pressure because of this. Hyper competition में आपको एक प्रॉब्लम और ये आता है कि there is a possibility of a new entrant as well. Hyper competition है क्या? जहाँ पे बहुत लाउड, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो फॉर मार्केट शेयर, बहुत एडवर्टाइजिंग बहुत हैवी हो रही हो, कंटिन्यूसली चेंज आ रही हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यकीनन ये उस जगह होगा जहाँ अट्रैक्टिव मार्केट होगी। मार्केट शेयर के लिए झगड़ा वहां होगा जहां अट्रैक्शन होगी मार्केट में, जहां आपको कोई कैश काउ बनने का चांस होगा। तो उस मार्केट में नए प्लेयर्स भी एंट्री की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि हम भी इस मार्केट में से कुछ शेयर ले सकते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि हाइपर कंपटीशन में कोई नया कॉम्पिटिटर भी ऐड हो जाए, एंड दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज विच यू नीड टू टेक अ लुक एट। और अगर हो सके तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई बैरियर क्रिएट कर दिया जाए। वो कोई कॉस्ट का बैरियर हो सकता है, वो कोई लाइसेंसिंग का बैरियर हो सकता है, इफ इट इज देयर, इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री, राइट? लेट्स टॉक अबाउट बेंचमार्किंग। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को या अपनी हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह कंपेयर करते हैं विद अदर्स और विद आवर ओन परफॉर्मेंस इन द पास्ट। सो वी नीड टू हैव अ सिस्टमैटिक मेथड of comparing our results with some other results, and this process is called benchmarking. For example, हम कहते हैं कि जनाब एक पर्टिकुलर मे बी 2020 फॉर्मेट में हम कहते हैं कि एक अच्छे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट शुड बी मोर देन 100%। अब ये हमने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है,
any batsman in 2020 cricket having a less than 100% benchmark, 100% strike rate will be considered as a lousy batsman in 2020. पता क्या चला? पता ये चला कि अगर हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई स्टैंडर्ड मौजूद हो तो हम फिर ज्यादा बेहतर कंपैरिजन कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस का और अपने प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाले रिजल्ट्स का. मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं वॉक्सवैगन की. Volkswagen is known for making good quality cars. They are Germans. उनका एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव आया, उसने वो कंपनी ज्वाइन की और उसने कहा कि वी हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स दैट वी आर मेकिंग. और उसने अपनी टीम के साथ बैठ के ये डिसाइड किया कि वो कौन से एरियाज होंगे जिसमें हम इंप्रूवमेंट लाएंगे सो दैट आवर प्रोडक्ट्स बिकम अ बेटर प्रोडक्ट. वन ऑफ द एरियाज दैट दे आइडेंटिफाइड वाज the gap between various portions of the car. अगर आप कभी नोट कीजिए, गाड़ी का जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो उस दरवाजे और उसकी बॉडी के दरमियान एक बहुत नन्हा सा गैप होता है. जितनी गाड़ी लग्जरियस होगी उतना वो गैप कम होना चाहिए. अगर आप अपनी सुजुकी मैरान का हैचबैक बंद करें तो उसमें आपको अच्छा खासा पूरी छुपकली चली जाती है उसमें. हाउएवर इन लग्जरियस कार्स वो गैप कम से कम होना चाहिए. वॉक्सवैगन के उस चीफ एग्जीक्यूटिव ने मेजर कराया दैट व्हाट इज द डिफरेंस दैट दे हैव इन कंपैरिजन विद BMW एंड मर्सिडीज. यानी BMW की जो कार्स हैं उनमें वो जो स्टैंडर्ड गैप है वो कितना है और वॉक्सवैगन के पास कितना है. और फिर उसने एक टारगेट सेट किया अपने इंजीनियर्स के सामने कि इन द नेक्स्ट 2 years टाइम हमने इन गैप्स को रिड्यूस करते 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 उस लेवल पे जाना है जिस लेवल पे इस वक्त BMW और मर्सिडीज मौजूद है. एंड गेस व्हाट, दे डिड इट. यू नो व्हाई? बिकॉज उनके सामने एक टारगेट आ गया, उनके सामने एक डिफाइंड रिजल्ट था दैट ओके दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव. और उसमें उनकी इंजीनियरिंग टीम, उसमें उनकी डिजाइन टीम, उसमें उनकी इंप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट, सारे लोग मिलकर बैठे एंड दे वर्क टुगेदर एंड अल्टीमेटली इन 2 years टाइम दे वर एबल टू मैनेज दैट. सो बेंचमार्क्स बेसिकली गिव अस सम टारगेट्स. एक बैंक हो और वो बैंक कहे कि भाई इस वक्त हमारा पर कस्टमर टाइम, सर्विंग टाइम पर कस्टमर, दैट इज एक कस्टमर बैंक के अंदर दाखिल हो और उसने चेक कैश कराना हो तो उसको कितना टाइम लगता है. अज्यूम करते हैं कि उसको अभी मौजूदा हालात में 5 मिनट लगते हैं और बैंक सेट करे टारगेट दैट वी हैव टू रिड्यूस दैट टू 2 minutes. क्या होगा? उनके स्टाफ, उनके ऑपरेटर्स, जितने भी जो लोग उसमें सिस्टम में शामिल हैं, उन सब के सामने एक टारगेट होगा कि हमने अपनी कस्टमर सर्विस को किस तरह इन्हांस करना है कि हम इस टाइम को कम करके करते 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 2 minutes पे ले आए एवरेज टाइम. एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स अस इन इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जब हम टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग की बात करते हैं तो हमारे पास हम कई किस्म की बेंचमार्किंग से फायदा हासिल कर सकते हैं. One is called, the basic one is called internal benchmarking. Internal benchmarking क्या है? देखिए, अपने आप ये बेंचमार्किंग आप खुद भी कर सकते हैं. ये ऐसे है कि आपने कहा कि भाई पिछले सेमेस्टर में मेरे जो रिजल्ट्स आए, लेट्स से आपके एक सब्जेक्ट में 70% आए, 80% आए, जो भी आपके मार्क्स आए, आप उसको बेंचमार्क बनाएं और कहें कि अब मैं अगला जो सेमेस्टर दूंगा उसमें मैं मार्क्स इससे बेहतर लाने की कोशिश करूंगा. What are you trying to compare with? You are trying to compare with your own results, past results, and you are trying to improve on what you have done in the past. The only catch in this situation is कि अगर आपकी previous performance was already lousy, तो आप शायद हो सकता है दुनिया बहुत आगे हो सकता है एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें सारी दुनिया 90% मार्क्स ले रही हो और आपने 60 लिए हो तो आप 62 लेके कह रहे हो कि यार मैं तो पहले से बेहतर हो गया हूँ. ये एक इसमें इंटरनल बेंचमार्किंग में एक थोड़ी सी डिफिकल्टी है, हो सकती है. दूसरी हमारे पास बेंचमार्किंग है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग ये है कि हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करें विद सम कॉम्पिटिटर. फॉर एग्जांपल, अगर KFC और मैकडोनल्ड्स एक दूसरे से कंपीट कर रहे हो तो हो सकता है KFC इस चीज के ऊपर कंपेयर करने की कोशिश करे कि मैकडोनल्ड्स में एक कस्टमर जब क्यू में आता है तो वहां से लेके सर्विंग तक का टाइम कितना है. अज्यूम करते हैं मैकडोनल्ड्स में it's 3 minutes. इट्स अज्यूम्ड, ये रियल फिगर्स नहीं है. KFC
फिर अपने आप को देखेगा कि हमारा एवरेज टाइम पर सर्विंग क्या है, और अगर उनका टाइम लेट्स से 3 मिनट से ज्यादा है तो उन्हें देखना पड़ेगा कि कैसे उसको रिड्यूस करें ताकि अपने कॉम्पिटिटर के वो आसपास पहुंच सके या उससे बेहतर हो सके। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करके यू ट्राई एंड मेक योरसेल्फ बेटर देन देम और एटलीस्ट कम एट पार विद देम। द थर्ड टाइप ऑफ बेंचमार्किंग इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड बेंचमार्किंग। अब यहां पे जब हम कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग की बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन बिटवीन टू कॉम्पिटिटर्स, यू नो, योर कंपनी कंपेयरिंग इटसेल्फ विद अ कॉम्पिटिटर। हाउ अबाउट अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जहां पे आप एक एक्टिविटी को कंपेयर करें किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से विच इज नॉट रियली योर कॉम्पिटिटर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होम डिलीवरी सर्विसेज देती हैं। आपने उनके पास इक्विपमेंट ऑर्डर किया, वो कहते हैं जनाब हम आपके घर पे सामान डिलीवर करेंगे। अब इनका जो डिलीवरी का यानी द टाइम बिटवीन, जिसको हम लीड टाइम कहते हैं, टाइम बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी इज कॉल्ड द लीड टाइम। अगर ये जो होम डिलीवरी कंपनी है ये अपने प्रोसेस को कंपेयर करे विद अ कंपनी लाइक DHL, तो क्या होगा? ये दोनों काम तो एक जैसे, एक्टिविटी तो एक जैसी है, लेकिन एक्चुअली काम दोनों के अलग अलग है। दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स। सो क्या होगा कि ये जो होम डिलीवरी वाली कंपनी है ये अपने उस डिलीवरी प्रोसेस को एट पार लाने की कोशिश करेगी विद DHL और विद एनी अदर कोरियर कंपनी जो ऐसा ही एक काम करती है बट कॉम्पिटिटर नहीं है। सो एक्टिविटी बेस्ड बेंचमार्किंग में यू नेसेसरीली डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ with a competitor, but you just try to see who else in the world is doing this kind of stuff and अपने आप को उसके साथ आप उस एक्टिविटी के साथ आप कंपेयर करते हैं। जेनेरिक बेंचमार्किंग एक और कॉन्सेप्ट है जिसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये उस वक्त आप जेनेरिक बेंचमार्किंग आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास कोई कंपैरिजन के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। लेट्स से योर ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग समथिंग विच नोबडी एल्स मेक्स, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? लेट्स से यू मेक अ डिवाइस और उस डिवाइस को बनाने में आपको 3 घंटे लगते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके इर्द गिर्द दुनिया में कोई ये चीज बनाता ही नहीं है एंड यू आर द ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग इट, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें विद एनीवन एल्स। और इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने रिजल्ट्स के साथ चलते रहते हैं। इसको हम जेनेरिक बेंचमार्किंग कहते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वही उसका स्टैंडर्ड बन जाता है एंड देन यू ट्राई एंड इम्प्रोवाइज ऑन दैट। सो दिस वाज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग को इंपॉर्टेंट हमने क्यों समझना है? इसलिए कि बेंचमार्किंग बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। इट gives people a direction to work on and obviously it becomes a source of motivation as well। जब लोगों के सामने एक क्लियर टारगेट होता है कि हमने अल्टीमेटली ये अचीव करना है, तो उनकी एफर्ट्स, उनकी ज़ील, उनकी जो तवज्जो है वो भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहती है। Okay जी, so let us conclude this chapter. In this chapter we have discussed about value chain analysis, we have discussed about the Porter's generic strategies, जिसमें उसने हमें बताया about the 3 possible strategies that we have in order to compete. One was cost leadership, the other one was differentiation, and obviously we cannot forget the focus differentiation option. We discussed about the strategy clock as well in detail. इसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट हाइपर कंपटीशन, क्या होता है हाइपर कंपटीशन और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें सर्वाइव कर सकती है। इसके आगे हम चले और हमने फिर बात की हाउ टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वी डिस्कस्ड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और अगर आप प्राइस बेस्ड या कॉस्ट बेस्ड लीडरशिप पे हैं तो आप उस एडवांटेज को किस तरह मेंटेन करेंगे। एट द एंड वी कंक्लूडेड द चैप्टर विद अ डिस्कशन ऑन बेंचमार्किंग। This was the first chapter in strategic choices. हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को इन चैप्टर नंबर 6 एज वेल, और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं एज अ मैटर ऑफ चॉइस जिनके मुतालिक हमें फैसला करना है और जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।